بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ پریشان صورت لیے میں سڑک کے کنارے کھڑا سواری کا انتظار کر رہا تھا۔ صبح سے ایک بھی سواری نہیں لگی اور اس وقت مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ میں سوچوں میں گم پریشان کھڑا تھا کہ اچانک ایک عورت کالے رنگ کے بھرکے میں ملبوس تیزی سے میرے رکشے کے قریب آئی۔ جلدی چلو، میری بہو کے یہاں بچہ ہونے والا ہے، اسے لے کر میرے ساتھ چلو۔ میں خوش ہو گیا کہ چلو مجھے سواری مل گئی۔ پھر وہ عورت تو رکشے میں بیٹھ کر مجھے اپنے گھر کا پتہ بتانے لگی، جبکہ میں تیزی سے رکشے کو ادھر ادھر گھما رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے رکشہ ایک گھر کے سامنے رکوایا اور اس لڑکی کو لے کر نیچے آئی جس کے یہاں بچہ ہونے والا۔ میں نے دیکھا لڑکی درد سے تڑپ رہی تھی۔ وہ دونوں رکشے میں سوار ہوئی اور میں نے تیزی سے رکشہ بھگا دیا۔ کہاں جانا ہے آپ کو بی بی؟ میں نے اس سے راستہ پوچھا تو وہ کہنے لگی، میں تمہیں راستہ بتاتی ہوں، تم بس ہمیں وہاں لے کر چل۔ دائیں بائیں موڑ کاٹتے وہ عجیب و غریب راستہ مجھے بتانے لگے۔ مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کیونکہ لڑکی درد سے تڑپ رہی تھی، جبکہ وہ عورت اسے ہسپتال لے جانے کے بجائے اسی آبادی میں لے کر جا رہی تھی۔ وہ مجھے راستہ بتاتے بتاتے کافی دور لے آئی۔ 1 گھنٹہ ہو گیا تھا لیکن وہ آبادی آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب اس جگہ سے تو میں بھی واقف نہیں تھا۔ میں نے اس عجیب نفسیاتی عورت کو غصے سے دیکھا تھا۔ لڑکی کی تکلیف کی اسے کوئی فکر نہیں۔ شاید وہ اس لڑکی کو کسی دائی وغیرہ کے پاس لے کر، تبھی اچانک اس نے ایک ویران اور سنسان جگہ پر رکشہ رکوایا۔ میں دہشت زدہ سا رہ گیا۔ آخر اس لڑکی کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے؟ کیا اس سے مار کر یہیں پھینکنا چاہتی ہے؟ ذہن میں عجیب سے سوال آ رہے۔ پھر اس نے رکشے کا کرایہ ادا کیا۔ رکشے کا کرایہ بھی اس نے ڈبل دیا۔ پھر اس نے لڑکی کو رکشے سے اتارا۔ وہ مکمل اس کے رحم و کرم پر تھی، درد کی شدت سے کچھ بھی سمجھنے سے قاصر۔ اسے اپنے ساتھ لے کر اس ویران جگہ پر تیزی سے جھاڑیوں کے بیچ سے ہوتی نہ جانے کہاں لے کر جانے لگی، جبکہ مجھے اس ظالم عورت پر شک محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ کہیں اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ مجھے اس لڑکی کی جان بچانی چاہیے جو درد سے تڑپ رہی ہے۔ یہ سوچ کر میں تیزی سے اس کے پیچھے جانے لگا، لیکن جیسے ہی میں تھوڑی آگے آیا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہاں نہ تو اس عورت کا کوئی نام و نشان تھا اور نہ ہی اس لڑکی کا، اور تو اور یہاں پر کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ جو عورت اس لڑکی کو لے کر کسی میں ہی چلی جاتی۔ میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انہیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن حد تو یہ تھی کہ ان کے پاؤں کے نشان بھی اس ریتلی زمین پر نظر نہیں آ رہے۔ تھوڑی دیر ان کا انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ دونوں مجھے کہیں نظر آ جائیں۔ پھر میں واپس جانے کا سوچ کر رکشے کی طرف آئے، لیکن میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے واپسی کا راستہ ہی معلوم نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے اللہ کا نام لیا اور رکشہ سٹارٹ کر دی۔ چونکہ میں نے شام کو سفر شروع کیا تھا اور اب رات ہو چکی، ایسے میں مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ میں کس راستے سے ویران جگہ پر آیا ہوں۔ عجیب سا خوف مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ رکشے کو ادھر ادھر بھٹکاتے میں جان نہ پایا کہ یہ سڑک کہاں پر ہے۔ دھول، مٹی اور جھاڑیوں اور درختوں نے ہر چیز پر پردہ ڈال دیا۔ یہ سوچ کر میرے آواز ساتھ نہیں دے رہے تھے کہ میں واپس جانے کا راستہ بھول گیا ہوں۔ کیوں اس عورت کی باتوں میں آ کر اس سنسان جگہ پر آیا؟ صاف منع کر دیتا کہ میں اس راستے کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ پریشان صورت لیے میں رات کے 10 بجے گھر جانے کا راستہ تلاش کر رہا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد رکشے سے ایک عجیب سی آواز اور وہ خود بخود بند ہو گیا۔ اب تو میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ لگ رہا تھا کہ پوری رات یہاں گزارنی پڑے گی۔ بھوک، پیاس اور تھکن نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی مفلوج کر دی۔ اب میں کس سے مدد مانگوں؟ سوچ کر میرا ذہن معوف ہو رہا تھا۔ تبھی دور مجھے ایک دیا سا جلتا نظر آیا۔ وہاں ایک روشنی چمک رہی تھی۔ اتنا تیزی سے سوچنے کی بجائے میں اس طرف جانے لگا۔ یہ دیکھ کر میں خوش ہو گیا کہ وہاں پر ایک گھر تھا جس کے اندر سے لوگوں کی آوازیں بھی آ رہی۔ بنا سوچے سمجھے میں دروازے پر دستک دے چکا تھا، یہ جانے بنا کہ بھلا اس ویران جنگل میں یہ پراسرار گھر کس کا ہے۔ میرا نام راشد ہے، میں غریب رکشہ ڈرائیور تھا۔ بچپن سے ہی محنت مزدوری کرتا رہا۔ میں اپنی 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ بہنوں کی مجھ سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن ابا کے مرنے کے بعد میں جو کالج میں پڑھائی کر رہا تھا، ابھی میرا فرسٹ ایئر ہی تھا، اچانک ہی ابا کا انتقال ہو گیا۔
میں نے فوراً ہی پڑھائی چھوڑ دی، لیکن لوگوں نے مشورہ دیا کہ ساتھ ساتھ پڑھائی کرو اور محنت مزدوری بھی کرو۔ لیکن میرے اندر ایک طاقت تھی۔ گھر کے حالات بہت ہی خراب تھے اور پھر گھر بھی کرائے کا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے وقت گزرا اور میں نے رکشہ چلانا سیکھ لیا۔ یہ ابا کا ہی رکشہ تھا جو بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار، لیکن میں نے اس پر کام کروا کر اسے نئے جیسا بنا۔ اب یہی میرے روزگار کا ذریعہ تھا۔ ابھی تک میں اپنا گھر بھی نہیں خرید سکتا، اوپر سے تینوں بہنیں بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی۔ اب ان کی شادی کرنے کی عمر تھی۔ یہی سوچ سوچ کر میں پریشان رہتا کہ بہنوں کی شادیوں میں جہیز کہاں سے دوں گا، کیونکہ آج کل پیٹرول اور CNG وغیرہ مہنگی ہونے کی وجہ سے ہمارا روزگار بالکل ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ آئے دن ہڑتالوں کی وجہ سے ویسے ہی میں کام پر نہ نکلتا۔ بہنیں بھی سلائی کڑھائی کر کے میری گھر چلانے میں مدد کر رہی تھی، لیکن مجھے بہت دکھ ہوتا انہیں محنت کرتے تھے۔ دراصل ہر مہینے گھر کا کرایہ بھی دینا ہوتا، اسی لیے کرائے کی بہت فکر رہتی۔ ساری زندگی کرائے کے گھر میں نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ میری آنکھوں میں بھی زندگی بدلنے کے خواب تھے، ایسے لگتا جیسے کبھی خواب پورے نہیں ہوں گے۔ لیکن آج میں عجیب مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا، اس پاگل عورت کی وجہ سے جس نے اس لڑکی کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کیا۔ دونوں اس ویرانے میں جا کر غائب ہو گئی تھی، لیکن مجھے بھی وہاں بھٹکتا چھوڑ۔ شکر تھا کہ گھر نظر آیا تو میں نے اس کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اب میں یہاں اس خاندان سے مدد مانگنا چاہتا تھا، تبھی دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولنے والی ایک بے انتہا خوبصورت لڑکی، اس کی خوبصورتی دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس ویران جنگل میں کوئی پری راستہ بھول کر یہاں۔ میں گھبرا کر اس سے کہنے لگا، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ دراصل میرا رکشہ خراب ہو گیا ہے اور میں راستہ بھی بھٹک گیا ہوں۔ کیا ایک رات میں اس گھر میں گزار سکتا ہوں؟ تبھی اس نے اندر منہ کر کے کسی کو زور زور سے آواز لگائی، ابا یہ دیکھو کون آیا ہے۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اس کی آواز نہیں بھیانک اور بھاری تھی۔ آواز سن کر تو میرے خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو۔ وہ منظر سے ہٹ چکی تھی جب ایک بوڑھا آدمی اپسی چال چلتا میرے سامنے آیا۔ اس کا لباس دیکھ کر میں چونک گیا، جبکہ ٹانگ میں واضح طور پر لڑکھڑاہٹ تھی۔ شاید وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا۔ اس نے سر سے پاؤں تک مجھے پھر اندر آنے کا اشارہ کیا، لیکن اندر ڈھیر سارے لوگوں کو دیکھ کر میرا اعتماد چکنا چور ہونے لگا۔ قریبی ایک پلنگ پر بڑھیا بیٹھی بڑے غور سے مجھے دیکھ، جبکہ ایک طرف ایک عورت بڑی سی ہانڈی میں کچھ پکانے میں مصروف تھی، جس کی عجیب و غریب خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی۔ سب لوگ شاید کھانے کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ میں بھی سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ کہاں سے آئے ہو تم؟ اس بوڑھے نے مجھ سے سوال کیا تو میں کہنے لگا کہ میں یہاں سے تھوڑی دور اس آبادی میں رہتا ہوں جو شہر میں واقع ہے، لیکن آج ایک سواری ملی جو مجھے اس ویرانے میں لے آئی۔ میں آج سے پہلے اس راستے پر نہیں آیا، اس لیے راستہ بھٹک گیا تھا۔ بوڑھا سر ہلانے لگا۔ تبھی اس عورت نے اعلان کیا کہ کھانا پک کر تیار ہو گیا ہے، اور سب نیچے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ تبھی وہ لڑکی کہنے لگی، آؤ تم بھی کھانا کھا لو۔ اس کی آواز بڑی عجیب و غریب کرخت سے، لیکن آنکھوں میں مہربانی کی چمک تھی۔ لیکن جیسے ہی میری نظر تھالی میں موجود کھانے پر پڑی تو مجھے عجیب سا احساس۔ وہ کھانا ایسا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی ڈش کبھی نہیں دیکھی، لیکن پھر بھی میں ان کا دل رکھنے کے لیے ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ہاتھ دھوئے اور میں اس بوڑھے کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ ساری رات جاگتے رہتے۔ بڑا عجیب و غریب سا گھر تھا۔ گھر کا کچھ حصہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، لیکن پھر بھی یہ بڑا سا خاندان اس گھر میں آرام سے۔ میں کچھ جھجکتے ہوئے اس بوڑھے سے پوچھنے لگا، آپ لوگ یہاں اس سنسان علاقے میں کیوں رہتے ہیں؟ مطلب آپ کی ضرورتیں کیسے پوری ہوتی ہیں؟ میرے دل میں آیا سوال پوچھا تو بوڑھا ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہنے لگا، یہاں ہم سکون سے رہتے ہیں، ہر پریشانی سے بے نیاز۔ اور دیکھو میرا اتنا بڑا خاندان ہے، اگر اسے لے کر تمہارے شہری علاقے میں جاؤں گا تو ہمیں بھلا اتنے بڑے خاندان کو کون گھر؟ وہ سب میرے ارد گرد بیٹھ گئے۔ میں ان کی نظروں سے بری طرح گھبرا رہا۔ یہ سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں جیسے میرے سر پر سینگ ہو یا پھر میں کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہوں۔ ابھی میں اس بوڑھے سے بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں کسی نوزائیدہ بچے کے رونے کی میں حیران رہ گیا۔ اس گھر میں شاید کوئی چھوٹا بچہ بھی ہے۔ میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو بوڑھا لاپرواہی سے کہنے لگا،
घबराओ मत, मेरी बीवी एक दाई है, वो औरतों के बच्चे पैदा करवाती है। अब मुझे कुछ घबराहट सी हुई, क्योंकि इस वीराने में भला कौन उसके पास आएगा। इतनी दूर आते आते शायद रास्ते में ही बच्चा इस दुनिया में जन्म ले। लेकिन अचानक ही मेरे जहन में चमका, शायद वो औरत अपनी बहू को यहाँ ही लेकर आई, क्योंकि उसके यहाँ भी तो बच्चा होने वाला था। इसका मतलब है कि वो वापस भी चली गई। लेकिन वापस कैसे गई होगी? इतनी दूर से बगैर किसी सवारी के आना जाना नामुमकिन है। अजीब सी उलझन में गिरफ्तार था। तभी बूढ़े ने जैसे मेरा जहन पढ़ लिया। फिर वो मुझे देखते हुए कहने लगा, देखो, यहाँ पर अक्सर रात को ही औरतें आती हैं जिनके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला। इस घर में जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो औरत वापस अपने ठिकाने पर लौट जाती है। उनकी बात सुनकर मैंने सर हिला दी। फिर मैं कहने लगा, आप लोगों का गुजारा कैसे होता है? मतलब क्या आपके बच्चे शहर में कमाने जाते हैं? ये सुनकर बूढ़ा अजीब से अंदाज में मुस्कुराया, कहने लगा, अरे नहीं नहीं, हमारे पास बहुत दौलत है, इतनी कि हम 7 पुश्तें बैठकर खा सकते हैं। मैं उसकी बात पर हैरान रह गया था। हालांकि घर बार और हुलिये से वो इतने अमीर नहीं लग रहे थे। लेकिन अचानक ही वो बूढ़ा रोने लगा। सारे उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। मैं भी उसे देखकर घबरा गया। हालांकि मैंने तो उसे कोई ऐसी अजीब बात भी नहीं। तभी सामने खड़ी वो खूबसूरत नौजवान लड़की उस बूढ़े से कहने लगी, क्यों रोते हैं? आज फिर आपको उसकी याद आ गई? वो बूढ़ा कहने लगा, न जाने वो कहाँ भटकती फिर रही हो। एक ही तो मेरी बेटी थी, वो भी मुझसे जुदा हो गई। तभी वो अपनी बेटी के कान में सरगोशी करते हुए कहने, तो बेटी कहने लगी, आप इससे बात कर लें, अगर ये हमारा काम कर देगा तो इससे बहुत फायदा हासिल। ये कहकर वो अंदर चली गई। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ खड़े सारे लोग एक एक करके अंदर चले गए, जबकि मेरे सामने वो बूढ़ा बैठा ही रह गया। मैं अजीब उलझन ज़्यादा नजरों से उसे देख रहा कि आखिर वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे बूढ़े का रोना भी समझ नहीं आया। तभी सबके जाने के बाद वो सरगोशी में मुझे कहने लगा, तुम मेरा एक काम करोगे रिक्शे वाले जी? जी जी, आप बताएं। मैं बड़ी इज्जत और एहतराम से उनसे गुफ्तगू कर रहा था। वो चंद लम्हे मुझे खामोशी से देखता रहा, फिर कहने लगा, जहाँ जिस शहर से तुम आए हो वहाँ पर मेरी एक बेटी है जो मुझसे नाराज होकर चली गई थी। बस मैं उसी की याद में रो रहा था। तुम मेरी बेटी को एक मेरा पैगाम दे देना और छोटा सा तोहफा भी। अगर वो उस पैगाम को सुनकर मुझसे मिलने आ गई तो तुम नहीं जानते कि मेरा दिल कितना खुश होगा। इस बुढ़ापे में मुझे खुशी मिल जाएगी। मैं हैरान होकर कहने, लेकिन इतने बड़े शहर में आपकी बेटी को तलाश करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप बताएं मुझे उसकी कोई निशानी, उसका कोई पता वगैरह है आपके पास? तभी बूढ़े ने अजीब सी जुबान में कुछ अल्फाज मुझे कागज पर लिखकर, जिन्हें मैं कतन समझ नहीं पाया। मुझे ये अल्फाज समझ में तो नहीं आए थे और ना ही उन पर लिखा हुआ एड्रेस। लेकिन फिर भी मेरे दिल में ख्याल आया कि शहर में कोई तो ऐसा होगा जो ये जुबान समझकर मुझे ये एड्रेस बता दे। वैसा भी बूढ़ा उस वक्त बहुत दुखी लग रहा था। मैं उसे इनकार करके उसे मजीद दुख में मुब्तला नहीं करना चाहता। तभी बूढ़े ने अपनी बेटी को आवाज दी और कहने लगा, वो तोहफा भी लेकर आओ जो मैंने उसके लिए काफी सालों से संभाल कर रखा है। बेटी उसकी एक आवाज पर ही लाल रंग का डब्बा लेकर आई। बूढ़े ने वो डब्बा दिया, फिर कहने लगा, ये डब्बा और ये पता मैंने तुम्हें दे दिया है। जैसे ही वो तुम्हें इस शहर में मिले तुम ये उसके हवाले कर देना। मैंने उस बूढ़े से वादा कर लिया कि मैं उसका पैगाम उसकी बेटी तक जरूर पहुंचा दूंगा। मैं हैरान था कि इतना बड़ा खानदान होने के बावजूद वो बूढ़ा खुश। शायद वो बेटी उसकी बहुत लाडली थी। मुझे उसका दुख अपने दिल पर महसूस। मैंने फैसला किया था कि मैं जैसे ही शहर जाऊंगा तो उसकी बेटी को जरूर तलाश करने की कोशिश करूं। अब मैं उस चांदनी रात में बाहर चारपाई पर ही लेट गया था, आंखों पर बाजू रखे मैं अपने घर के बारे में सोचने लगा। अम्मा और बहनें कितनी परेशान होंगी कि अभी तक राशिद आया क्यों नहीं। आज से पहले पूरी रात में कभी घर से बाहर नहीं। फिर जैसे जैसे रात गुजरने लगी मंजर मेरी आंखों के सामने धुंधलाने लगे, क्योंकि मुझ पर नींद का गलबा तारी हो रहा। फिर मैं जैसे ही गहरी नींद में सो गया, दिन भर का थका आ रहा था। सुबह चिड़ियों के चहचहाने से ही मेरी आंख खुली थी। मैं हैरान परेशान सा चारों तरफ देख रहा था। फिर एकदम से मेरा दिल धक से रह गया। मैं जो रात को उस घर में सोया था, लेकिन अभी रिक्शे में बैठा बैठा गहरी नींद में था। मैंने पागलों की तरह अपने चारों तरफ देखा। ये एक वीरान रास्ता था जहाँ पर सिर्फ मैं अकेला रिक्शे में बैठा था। मैं फौरन ही रिक्शे से उतरा और इधर उधर देखते हुए उस घर को तलाश करने लगा जिसमें मैंने रात गुजारी। लेकिन उस घर का यहाँ नामो निशान भी नहीं था।
मैं अपना सर पकड़े दहशत ज़दा सा था। ये सब मैंने कोई ख्वाब देखा था या मेरे साथ हकीकत में हुआ? मुझे वो बूढ़ा, उसका पूरा खानदान अच्छी तरह याद था, साथ ही उसका वो पैगाम भी जो उसने मुझे अपनी बेटी के नाम पर दिया था। लेकिन फिर ख्याल आया कि ज़रूर मैंने कोई गहरा ख्वाब देखा है जिसकी वजह से अभी तक मेरा जहन भारी है। सर झटकते हुए मैं वापस रिक्शा स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक ही याद आया कि रिक्शा तो रात को ही खराब हो गया था। तभी मेरी नजर रिक्शे सीट पर पड़ी पैरों तले से वो लाल रंग का डब्बा और साथ में रखा सफेद कागज। मैंने कांपते हाथों से वो कागज उठाया। अजीब सी जुबान में लिखा हुआ उसकी बेटी का वो एड्रेस अभी भी उसे ऐसे ही मेरे हाथ में मौजूद कागज पर लिखा हुआ था। मेरा माथा ठनका। मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा था, ये सब हकीकत में मेरे साथ हुआ था। बेकरारी से एक बार फिर उस घर को तलाश करने लगा, लेकिन उस वीराने में उसका नामो निशान भी नहीं था। अचानक ही दूर से मोटरसाइकिल पर मुझे एक आदमी अपनी तरफ आता दिखाई। मैंने बेइख्तियार हाथ के इशारे से उस आदमी को रोका। वो कुछ घबरा कर मेरे सामने रुका, फिर मुझे ऐसे देखने लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया। मैं उससे कहने लगा कि आपको रोकने के लिए माजरत, लेकिन मुझे इस वक्त आपकी मदद की ज़रूरत है। ज़रा मेरा रिक्शा रात से ख़राब है, खुदा के लिए मेरी मदद करें ताकि मैं इस बियाबान जगह से निकलने में कामयाब हो जाऊं। तो वो सरगोशी में कहने लगा, अरे भाई साहब, आप भी कहाँ रिक्शा लेकर आ गए? ये जगह तो बड़ी भारी है, क्या मतलब है आपका? मैं हैरान रह गया था। तो वो इधर उधर देखते हुए कहने लगा, दरअसल इस जगह पर भूत प्रेत का साया है। अक्सर आपको गुजरने वाले लोगों को वो जिन्नात परेशान कर। आपके साथ कोई अजीब वाक़या पेश तो नहीं आया? मैंने नफी में सर हिलाया और मैंने तो अपनी रात बड़ी सुकून से गुजारी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये जगह भारी है। जब भी मेरा रिक्शा भी यहाँ खराब हो गया। अब वो आदमी मेरे साथ रिक्शा ठीक करवा। उसके पास पानी की एक बोतल भी थी। थोड़ी देर में रिक्शा स्टार्ट होने में कामयाब हो। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया तो वो सरगोशी में कहने लगा, जल्दी निकले इस जगह से, शुक्र करें कि आपकी जान सही सलामत है। मैंने लाल रंग का डब्बा और कागज उस आदमी की नजरों से छुपा लिया था। मुबादा ही उसे देखकर कोई सवाल जवाब न शुरू कर दे। फिर तेजी से रिक्शा स्टार्ट किया और उस जगह से अपने घर की तरफ ले जा। अभी तक मेरा जहन भारी हो रहा, दिमाग बोझल ऐसे लग रहा था जैसे कोई भयानक ख्वाब देखा। घर पहुंचा तो मैंने कमरे में वो लाल रंग का डब्बा और कागज छुपा कर रखा। अम्मा बड़ी परेशान थी, साथ में बहनें भी कहने लगी, कहाँ चले गए थे भाई पूरी रात से? हम लोग तो मोहल्ले वालों के पास जाकर आपको ढूंढने का कहने वाले थे। आपको पता है आजकल शहर के हालात भी ठीक नहीं। मैं उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगा कि परेशानी की कोई बात नहीं, बस एक सवारी की वजह से देर हो गई थी, इसलिए मैंने रात वहीं पर गुजारी। मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया कि मेरे साथ क्या अजीबोगरीब वाकया पेश आया। अगले दिन मैं रिक्शा लेकर निकला और सड़क के किनारे खड़ा था। अभी तक कोई सवारी नहीं लगी, इसलिए पास से गुजरने वाले पढ़े लिखे शख्स के पास गया और उससे कहने लगा कि आपको ये जुबान समझ आती है? मैंने जैसे ही वो कागज उसके हाथ में थमाया, वो अल्फाज देखकर हैरान रह गया। बड़ी हैरत से कहने लगा, आज तक मैंने ये जुबान ना तो किसी किताब में देखी है, ना ही मोबाइल वगैरह पर। आपको किसने दिया है? वो कागज के हैरान अल्फाज को समझने की कोशिश कर रहा, लेकिन मैं जान गया था कि उसे ये जुबान नहीं समझ आती। फिर मैंने एक दो नहीं बल्कि 50 लोगों से उस कागज को दिखाया, लेकिन किसी को भी ये जुबान समझ नहीं आई कि उस पर एड्रेस कहाँ का लिखा है। फिर एक दिन मैं एक दूसरी जगह पर रिक्शा लेकर खड़ा था जहाँ मैंने अभी एक सवारी को छोड़ा। मैं थक हार कर एक दरख्त के नीचे बैठकर पानी पीने। अभी मैंने देखा मेरे बिल्कुल बराबर में एक बूढ़ा दरवेश बैठा था। वो अपने कलम से कागज पर कुछ लिख, उसकी राइटिंग बहुत ही खूबसूरत। अचानक ही मेरे जहन में चमका हुआ। ख्याल आया कि ये इतनी उम्र का दरवेश है, जरूर ये सैकड़ों जुबानों के बारे में मालूमात रखता होगा। फिर जैसे ही मैंने उसे कागज दिखाया तो वो बड़े अजीब से अंदाज में मुझे सर से पांव तक देखकर कहने लगा, ये कागज तुम्हें किसने दिया है? मैं लापरवाही से कहने लगा, दरअसल ये एक आदमी ने मुझे दिया था, ये उसकी बेटी का एड्रेस है, मैंने उसकी अमानत पहुंचानी है। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर कहने लगा, वो आदमी दिखने में कैसा था? मैं हैरान रह गया। उसकी बात पर उसे कहने लगा कि जैसे आमतौर पर इंसान होते हैं वो वैसा ही था। उसका एक बहुत बड़ा खानदान था, लेकिन वो मेरे सामने रो रहा था कि उसकी बेटी उससे जुदा हो गई है, इसलिए वो अपनी बेटी से मिलना चाहता है। मेरी बात सुनकर वो दरवेश फकीर कागज पर अपने कलम से कुछ लिखने, फिर उसने मेरे हाथ में एक एड्रेस थमा दिया। ये लो, ये एड्रेस ही उसी जुबान में लिखा हुआ जिसे मैं समझ गया हूँ,
लेकिन मैंने तुम्हारी समझ के लिए तुम्हारी जुबान में एड्रेस लिख। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। कागज पर लिखा हुआ एड्रेस बड़ा ही अजीब व गरीब था। न जाने ये किस जगह का एड्रेस था। मैं आज तक यहाँ नहीं गया, लेकिन अचानक ही मेरे जहन में ख्याल आया कि ये जगह आबादी से पिछली तरफ तो कच्ची बस्ती है, वहाँ से थोड़ी दूर एक घर है। मुझे उसी घर में जाना चाहिए। शायद उस बूढ़े की बहन वहीं पर रहती हो। अगर मैं उसकी अमानत उसके हवाले कर दूंगा तो मेरे सर से बोझ उतर जाएगा। मैंने वो एड्रेस अच्छी तरह संभाल कर जेब में रख दिया। अगले दिन जैसे ही मैं गया तो वो लाल रंग का डब्बा लेना नहीं भूला। जाहिर है मुझे वही तो उसके हवाले करना था। खाली हाथ जाने का कोई फायदा नहीं था। फिर मैंने अपनी जेब से वो कागज निकाला जिस पर वो एड्रेस लिख। उसे अच्छी तरह पढ़कर मैंने जेब में रखा और फिर रिक्शा लेकर निकल पड़ा। आज पहली सवारी हाथ लगी तो बहुत खुशी हुई। सुबह सुबह दुआ करता कि जल्दी सवारी मिल जाए। फिर पूरा दिन अच्छा गुजरता। उस सवारी को मंजिल मकसूद पर पहुंचाने के बाद अब मैं फारिग था। मैं सोचने लगा कि अब मुझे इस एड्रेस पर चले जाना चाहिए। यही सोचकर मैंने अपने इलाके से बहुत दूर उस कच्ची बस्ती की तरफ रिक्शा दौड़ाना शुरू। कच्ची बस्ती की तरफ आकर मैंने सामने खड़े एक शख्स से उस घर के बारे में पूछा जो एड्रेस में लिखा हुआ था। जैसे ही मैंने उस घर के बारे में पूछा तो वो सर से पांव तक मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैंने उसे किसी 8वें अजूबे के बारे में पूछा। उसने हाथ के इशारे से मुझे घर का एड्रेस समझाया और मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, ध्यान से जाना, समझ नहीं आ रही कि तुम्हें ये एड्रेस किसने दिया। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और रिक्शा उसके घर की तरफ दौड़ाना शुरू कर दी। असर का वक्त होने वाला था, लेकिन जिस घर का पता उस कागज में दर्ज था अब मैं उसी घर के सामने खड़ा। तभी मैंने होले से उस घर के दरवाजे पर दस्तक, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आसपास ना तो कोई घर था और ना ही कोई इंसान खड़ा था जिससे मैं पूछ सकता कि यहाँ कौन रहता है। फिर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। इत्तेफाक से बड़े से गेट का छोटा दरवाजा खुला था। फिर मैंने यही गनीमत जाना और बेख्तियार अंदर चला आया। लेकिन अंदर आते ही होश उड़ गए क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे घर खाली पड़ा हो। मैं अपने होश खोने लगा। आखिर उसकी बेटी कहाँ रहती होगी। उसकी बेटी को ढूंढने के चक्कर में मैं तो जैसे पागल होने लगा था। तभी ऊपर कमरे से मुजीब सी आवाज आई। यकीनन ऊपरी मंजिल पर कोई रहता है, मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। साथ ही साथ मैं आवाज भी लगा रहा था कि यहाँ पर कोई रहता है या नहीं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जब मैंने दूसरी मंजिल पर हलचल महसूस की तो मैं सीढ़ियों की तरफ से ऊपर चला आया। सारे कमरों के दरवाजे बंद पड़े थे, लेकिन एक कमरे का दरवाजा खुला था। जैसे ही मैंने कमरे में झांक कर देखा, सामने ड्रेसिंग टेबल के पास एक लड़की बैठी थी। बड़े खूबसूरत लंबे बाल जमीन को छू रहे थे। आईने में उसका चेहरा वाज़ेह नहीं। उसकी वजह ये थी कि उसके सारे बालों ने उसका चेहरा छुपा रखा था। मैंने उलझन ज़दा नजरों से उसकी तरफ देखा और कहने लगा, मैं आपके लिए एक पैगाम लेकर आया, क्या ये आपका ही घर है? उसने एकदम ही पलट कर देखा और मैं जैसे हैरत से उछल पड़ा। उसकी सफेद आंखें मेरे सामने, सर से पांव तक वो एक अजीब से अजूबे की तरह मालूम हो। उसका पहनावा, उसके लंबे लंबे पांव तक आते बाल, ऊपर से बिल्कुल साकत सफेद आंखें, और मुसलसल मुझे देखे जा रही थी। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? जब उसने अपनी आवाज निकाली तो उसकी भारी आवाज सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं घबराए हुए लहजे में कहने, मैं आपके वालिद साहब का पैगाम लेकर आया। उन्होंने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया था, वो आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने आपके लिए एक तोहफा भी भिजवाया। तभी वो गुस्से से पलटी और वो तोहफा वापस लेकर जाओ। मुझे उनके तोहफे की जरूरत नहीं, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। लेकिन मैंने जल्दी से वो लाल रंग का डब्बा उसके साथ और फिर बाहर आने लगा। तभी पीछे से उसके तेज तेज रोने की आवाज, उसकी आवाज सुनकर मैं डर गया। मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे जाकर देखना चाहिए कि आखिर वो लड़की क्यों रो रही है। फिर जैसे ही मैं अंदर गया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकली, क्योंकि वो लड़की कहीं भी नहीं थी, जबकि रोने की आवाजें मुसलसल मेरे कानों में आ रही थी। मैं दहशत ज़दा सा उसे पूरे घर में तलाश कर, उसकी भयानक आवाजें मेरे असाब पर हथौड़े की तरह बरस रही। चंद मिनट तक मैं ऐसे ही फिरता रहा। फिर मुझे खौफ महसूस हुआ तो मैं जल्दी से घर से बाहर निकल आया। तभी पास से गुजरते एक शख्स ने मुझे सर से पांव तक देखा। क्या लेने गए थे आप उस घर में? उसने मुझसे ऐसे तफ्तीश की जैसे मैं कोई चोर डाकू था। मैं घबरा कर कहने लगा, मैं इस घर में रहने वाली लड़की से मिलने गया था, उसका पैगाम देने। ये सुनकर वो जोर से हंसा, फिर कहने, किसे बेवकूफ बना रहे हो? इस घर में तो कोई भी नहीं रहता। ये घर तो पिछले 20 साल से खाली पड़ा है। इस आसेबज़दा घर में कोई भी शख्स जाने की गलती नहीं करता। ये सुनकर खौफ के मारे मेरी रंगत पीली पड़ गई। मैं कुछ बात नहीं कहा।
और रिक्शे में बैठकर तेजी से उसे भगाने लगा। शुक्र था कि मेरा दोबारा उस लड़की से सामना नहीं हुआ, वरना सच में उसकी दहशतज़दा सूरत देखकर मैं खौफ से पागल होने वाला था। अब मैंने सोच लिया कि दोनों बाप बेटी पागल हैं और उसका पूरा खानदान भी। आखिर जब सुबह सवेरे में उठा तो वो और उसका घर और पूरा खानदान कैसे गायब हो गया था और मैं रिक्शे में कैसे बैठा, हालांकि मैंने तो उस घर में रात गुजारी थी। न जाने उस लाल रंग के डब्बे में ऐसा क्या था जिसे देखकर उसने रोना शुरू कर। मैं दोबारा उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। फिर से मैंने रिक्शा चलाने पर ध्यान शुरू कर दी। लेकिन एक दिन रात के 10 बजे मैं सड़क किनारे खड़ा था। उस दिन मेरी सवारी भी ज्यादा नहीं लगी, इसलिए मैं बड़ा परेशान था। तभी दूर से मैंने उस लड़की को देखा जो भागते हुए मेरे रिक्शे के पास आ रही। रिक्शे वाले, तुम ही थे जो मेरे बाप का पैगाम लेकर आए, चलो मुझे वहां लेकर जाओ। वो जबरदस्ती मेरे रिक्शे में बैठ। मैंने कुछ खौफजदा नजरों से उसकी तरफ देखा। लड़की मुझे कोई आम इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही लग रही थी। उसके लंबे बालों की चुटिया जमीन को छू रही, दुपट्टे से चेहरा छुपाए वो मुझे वहीं ले जाने का कह रही थी जहाँ मैं एक बार जाकर दोबारा जाना नहीं चाहता था। लेकिन न जाने क्यों मुझे उस लड़की से बहुत डर लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे अगर मैंने इसे मना कर दिया तो ये मेरे साथ कुछ गलत न कर कहीं मार न डाले। इसलिए खामोशी से मैंने रिक्शा स्टार्ट कर दिया, गो के वो रास्ता अभी तक मुझे याद नहीं। लेकिन फिर भी मैंने उसी तरफ जाना शुरू किया जहाँ पर उस दिन वो औरत अपनी हमला बहू को साथ लिए मुझे लेकर गई। लेकिन जैसे ही उस वीरान रास्ते पर रिक्शा डालने लगा, अचानक ही मैं रुक गया क्योंकि आगे जाने का रास्ता मैं भूल चुका था। तभी वो पीछे लड़की कहने लगी, दाएं तरफ मोड़ लो। उसकी बात पर मैं जाहिर है वो उसके बाप का घर था, उसे अच्छी तरह याद होगा कि इसे कहाँ जाना है। फिर मैंने उसके बताए रास्ते पर रिक्शा चलाना शुरू। जैसे ही रात के 12 बजे मैं ठीक उसी मकान के सामने पहुंच गया। अब मुझे डर भी लग रहा था कि उस दिन की तरह मेरे साथ ये सब वाकया पेश आएगा। सुबह सवेरे आंख लगी तो ये सब गायब हो जाएगा। मैं अजीब सी उलझन में गिरफ्तार बाहर ही खड़ा, जबकि वो भागती हुई अंदर चली गई। अंदर से रोने की आवाज आई, लेकिन मैंने दरवाजे से झांक कर देखा, सब उस लड़की को घेरे हुए थे, सब उसे गले लगा रहे थे, जबकि वो लड़की भी अपनों से मिलकर रो रही थी। वो बूढ़ा आदमी एकदम से पलटा। उसने मुझे दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ देख लिया था, हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुला रहा था। मैं अंदर जाना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे उनसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी उसकी बात मानना जरूरी था, इसलिए उनके सामने चला गया। फिर वो बूढ़ा आदमी उन सबके सामने कहने लगा, इसी की वजह से ज़ुलेखा आज हमारे पास आई है। मैंने देखा वो लड़की जो बड़ी अजीब व गरीब थी मुझे मुस्कुराती नजरों से देख रही थी। मैंने सर झुका लिया। तभी वो बूढ़ा कहने लगा, आज तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। पहले जिन्नात इंसानों की मदद करते थे, लेकिन आज तुमने हम जिन्नात की मदद की। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं फटी फटी निगाहों से उनकी तरफ देखने लगा। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अभी और उसी वक्त वहां से भाग जाऊं। मुझे यूं घबराते देखकर वो मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए। वो जिनजात कहने लगा, घबराओ मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना ही हम तुम्हें डराना चाहते हैं, लेकिन जो हकीकत है हम तुम्हें बता रहे हैं। दरअसल ये हमारा जिन्नात का खानदान है। हम इंसानों की दुनिया से बहुत दूर इस जंगल में रहते हैं। मैं इन सब का सरदार हूँ। यूँ समझ लो कि ये हमारा एक ही खानदान है। ये मेरी बीवी जो जिनजादियों की दाई है। अक्सर ही इंसानी दुनिया में रहने वाली जिनजादियों को ये बच्चा पैदा करवाने में मदद देती है। यही वजह है कि वहाँ से बहुत दूर यहाँ जिनजादियाँ आती हैं और अपने बच्चे लेकर चली जाती हैं। लेकिन कई सालों पहले मेरी बेटी नाराज होकर इंसानों की दुनिया में चली गई। इसका नाम ज़ुलेखा है, ये ही मेरी बेटी थी। लेकिन जब मैंने इसे वापस बुलाना चाहा तो मुझे कहीं मिली ही नहीं। लेकिन मैं जान गया था कि ये कहाँ रहती है। ये वहाँ चली गई थी जहाँ एक वीरान और खाली घर पड़ा था। उस घर के आसपास सभी इंसान जानने लगे कि यहाँ एक जिनजादी रहती है, इसलिए इसकी दहशत से कोई भी उस घर में दाखिल न होता। लेकिन मुझे इसकी फिक्र थी। मैं नहीं चाहता था कि कोई इंसान उसे परेशान करे या फिर कोई इसे कैद कर दे। यही वजह थी कि मैं इसे अपने पास बुलाना चाहता था। लेकिन सालों गुजर गए। हमारे और इसके दरमियान एक बात हो रही थी। वजह ये थी कि ये बात उसके दिल में किसी तीर की तरह चुभी और ये वापस हमारे खानदान में नहीं आ सकी। लेकिन कई साल गुजर गए। आज जब मैंने इसे खत में लिखा कि अब मैं बहुत जल्द मुझे कुछ होने वाला है,
तुम मुझसे मिलने आओ। तो ये सुनते ही वो तुम्हारे साथ यहाँ पर आ गई। तुम्हारी मेहरबानी रिक्शे वाले, तुमने हमारी बहुत मदद की। देखो, तुम्हारी वजह से बेटी अपने खानदान से मिल गई, ये बहुत बड़ी बात है। वो बूढ़ा जिनजात बहुत खुश नजर आ रहा था, जबकि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं यहाँ से पलक झपकने में ही गायब हो जाऊं। मैं बस अब घर जाना चाहता था, कहीं ये मुझे यहाँ पर कैद न कर ले। मेरे दिल में अजीब से वसवसे आ रहे थे। तभी वो जुलेखा जिनजादी कहने लगी, अरे अब्बा जान, ये रिक्शा ड्राइवर बहुत ही अच्छा है। उस दिन तो ये डर कर भाग गया था, लेकिन जब मैं इसके रिक्शे में बैठ गई तो ये मुझे यहाँ तक ले आया, मेरी वजह से कि मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ। आप इसे इनाम दें, क्योंकि ये इनाम का मुस्तहिक है। ये सुनकर वो सारे खुश हो गए थे, जबकि मैं यहाँ पर कोई इनाम लेने नहीं आया था। बस मैं खैर खैरियत से अपने घर वापस जाना चाहता था। फिर वो जुलेखा जिनजादी कहने लगी, जो तोहफा आपने मुझे भिजवाया था, वो तोहफा मैं इसे देना चाहती हूँ। ये कहते ही उसने वो लाल रंग का डब्बा मेरे हवाले कर दिया। मैंने उस तोहफे को लेने से इनकार किया और उस बूढ़े जिनजात से कहने लगा, बस आप मुझे किसी तरह घर पहुंचा दें, क्योंकि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी अम्मा और बहनें परेशान होंगी और आगे का रास्ता मुझे मालूम ही नहीं। ये सुनकर वो बूढ़ा जिनजात मुस्कुराया और कहने लगा, परेशान मत हो, ये तोहफा भी तुम्हारा है और मेरा एक जिनजात तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ के आएगा, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वो लाल रंग का डब्बा हाथ में थाम लिया। जैसे ही रिक्शा स्टार्ट किया, अचानक से एक साया आकर मेरे रिक्शे के पीछे बैठ गया, जो मुझे शीशे में साफ दिखाई दे रहा था। उसकी चमकती सफ़ेद आंखें देखकर मैं सख्त खौफ का शिकार था। फिर वो मुझे जो रास्ता बताने लगा, जबकि मुझे रिक्शा चलाना दुश्वार हो रहा था। कभी मेरे हाथों में ठंडे पसीने आते तो कभी कभी घबराहट महसूस होती। फिर मुझे मंजिल मकसूद पर पहुंचाकर वो अचानक ही मेरे सामने से गायब हो गया, जबकि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैंने कोई भयानक ख्वाब देखा हो। रात के 3 बज रहे थे और मैं अब घर जा रहा था। गली में फैला खौफनाक अंधेरा देखकर मैं और भी खौफजदा हो गया। जल्दी से रिक्शे को उसके मुकाम पर खड़ा किया और तेजी से अपने घर चला आया, जहाँ पर अम्मा मेरे इंतजार में जाग रही थी। फिर अम्मा ने मुझे खाना दिया, हालांकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था। अम्मा पूछ पूछ कर थक गई कि आज मुझे इतनी देर क्यों हुई, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। खामोशी से चारपाई पर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली तो मेरे जहन में अचानक से ख्याल आया कि वो लाल रंग का डब्बा तो मैंने रिक्शे में ही छोड़ दिया। मैं किधरे मायूस सा हो गया, अब तक तो किसी ने उठा ही लिया होगा। अम्मा और बड़ी बहन नाश्ते के लिए आवाज दे रही थी, लेकिन मैं पहले रिक्शे को देखना चाहता था। जैसे ही रिक्शे के पास गया, वहां खड़े एक शख्स को देखकर चौंक गया। तभी वो मेरे करीब आया और कहने लगा, तुम्हारे इस तोहफे की मैं सारी रात हिफाजत करता रहा, अब इसे संभाल लो। ये कहकर वो अचानक दूर हो गया, जबकि मैं हैरान था कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। शुक्र था कि वो रिक्शे में ही मौजूद था, जिसे मुझे पाने की तवक्को ही नहीं थी। अब मैं उस लाल रंग के डब्बे को अपने साथ ले आया। मैं नहीं जानता था कि उसमें क्या है, लेकिन जैसे ही मैंने उसे खोलकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो पूरे का पूरा सोने चांदी के जेवरात से भरा था, लेकिन उसमें रखे जेवरात देखकर लगता था कि शायद ये बहुत सालों पुराने हैं। उनकी चमक बता रही थी कि ये बहुत कीमती और नायाब है। मुझे ये यकीन नहीं आया था कि जिन्नात ने मुझे इस कदर कीमती तोहफा दिया है। मैं अभी तक हैरत ज़दा था। ये लाखों के नहीं बल्कि करोड़ों के जेवरात थे। शायद ये उस बूढ़े जिनजात की बेटी के जेवरात उसने सालों से संभाल कर रखे थे, लेकिन उसकी बेटी ने ये सारे कीमती जेवरात मुझे क्यों दिए, वो भी तोहफे के तौर पर। मैं अभी उनका जायजा ले ही रहा था कि अचानक अम्मा कमरे में आ गई। अम्मा ने भी वो जेवरात देख लिए थे। कहने लगी, अरे ये कहाँ से आए तुम्हारे पास? लेकिन अब मैं उन्हें क्या बताता कि एक रात मेरी उस जिन्नात के खानदान से मुलाकात हुई जिसने एक ही दम से मेरी जिंदगी बदल दी। उसका छोटा सा काम करने पर मेरी किस्मत यूं बदल जाएगी, ये तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अम्मा उन जेवरात को देखकर खुशी का इजहार कर रही थी।
پھر ساری بہنیں بھی آ گئیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب سونے کے زیورات ہیں۔ وہ کہنے لگیں، بھائی آپ کو کہاں سے ملے؟ تو میں ان سے کہنے لگا کہ میں ایک دن ویران راستے سے گزر رہا تھا، جب مجھے راستے میں یہ لال رنگ کی پوٹلی نظر آئی۔ میں نے اسے ایسے ہی اٹھا لیا تھا، شاید کوئی چور ڈاکو سے راستے میں چھوڑ گیا تھا۔ وہ سب بہت خوش ہو رہی تھی، میں بھی ان کی خوشی میں خوش تھا۔ بہنوں کو شہزادیوں کی طرح رخصت کرنے کا جو میں نے خواب دیکھا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اب پورا ہونے والا ہے۔ زندگی کے دن اتنی تیزی سے بدلے کہ مجھے خود بھی یقین نہیں آیا۔ میں نے اپنی بہنوں کے لیے اچھے اچھے رشتے ڈھونڈنا شروع کر دیے تاکہ میں ان کا کسی عالی شان گھرانے میں رشتہ طے کر سکوں۔ میں انہیں ڈھیر سارا جہیز دے کر رخصت کرنا چاہتا تھا۔ پھر ہم نے کرائے کا گھر چھوڑ دیا اور میں نے اپنا ذاتی گھر خرید لیا تھا جو بہت خوبصورت تھا، بالکل اماں کے دیکھے ہوئے خوابوں جیسا۔ تینوں بہنوں کو ایک ہی ساتھ رخصت کر کے اب میں اپنی زندگی میں سکون محسوس کر رہا تھا۔ وہ زیورات جس میں سے آدھے میں نے فروخت کر کے اپنے گھر کے سارے مسئلے حل کر لیے تھے اور آدھے ابھی بھی میرے پاس موجود تھے، لیکن میں ان سے ایک بڑا کاروبار شروع کر چکا تھا۔ میں نے شو روم بنایا جس میں خوبصورت گاڑیاں رکھ لیں۔ اب میرا کاروبار خوب ترقی کر رہا تھا، دن بدن میری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تبھی میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے اپنی دولت میں ان غریبوں کو بھی حصے دار بنانا چاہیے جن کے میرے جیسے حالات تھے۔ میں اپنا ماضی کبھی نہیں بھول سکتا تھا، وہ تو میری قسمت اچھی تھی۔ اگر مجھے نہ تو وہ جنات کا خاندان ملتا، نہ ہی میری قسمت یوں بدلتی۔ لیکن کبھی کبھار میرے دل میں خیال آتا کہ میں ان سے ملاقات کرنے اسی ویرانے میں جاؤں جس کا راستہ اب مجھے اچھی طرح سے یاد ہو گیا تھا۔ لیکن باوجود اپنی خواہش کے میں ان سے ملنے نہیں جا سکا۔ پھر 2-3 سال گزرے تھے، اماں نے میری شادی کر دی۔ میری بیوی بہت ہی خوبصورت تھی، ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی سمجھدار لڑکی تھی۔ لیکن جیسے ہی میری زندگی میں وہ آئی تو اس نے میری قسمت بدل دی۔ سچ میں ہی وہ ایک سلیقہ اشعار اور محبت کرنے والی بیوی تھی جو میرا بہت خیال رکھتی۔ اب میرے ہاں ایک بچہ ہونے والا تھا۔ زندگی میں جتنی بھی میں نے تلخیاں سہی تھی، اس کے بعد جتنا میں نے سکون دیکھا تھا، شاید وہ ایک خوش نصیب انسان ہی محسوس کر سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ کسی کسی انسان کی قسمت بدلتی ہے، جیسے کہ میری اس دن بدل گئی تھی۔ لیکن ایک دن جب میں اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا تو بیچ سنسان سڑک پر میری گاڑی خراب ہو گئی۔ میں بڑا پریشان سا کھڑا تھا جب مجھے دور سے ایک لڑکی آتی دکھائی دی۔ اس کے لمبے بال دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے جو پاؤں کو چھو رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں اسے پہچان گیا تھا، یہ تو وہی جن زادی تھی، اس بوڑھے کی بیٹی۔ لیکن آج اس پرانے قبرستان کے سامنے کیا کر رہی ہے؟ میں نے دیکھا قبرستان کے اندر سے بھی دھواں سا نکل رہا تھا جس سے سارے منظر دھندلے ہو گئے تھے۔ تبھی میں نے اسے پکارا تو اچانک ہی پلٹ کر مجھے دیکھنے لگی۔ رکشے والے تم؟ اس نے مجھے پہچان لیا تھا، گو کہ میرے ہاتھ پاؤں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اپنے سامنے کھڑی جن زادی کو دیکھ کر میں سخت خوفزدہ تھا، لیکن پھر بھی میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا جس نے مجھے اپنی اتنی قیمتی زیورات دیکھ کر میری قسمت بدل دی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی، پھر اداس ہوتے ہوئے کہنے لگی، میرا بوڑھا جن زادہ باپ اب اس دنیا سے جا چکا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا، بلا شبہ وہ ایک نیک جنات تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، میں ابھی اسی کی قبر پر گئی تھی، وہ دیکھو سامنے میرے باپ کی قبر ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا تو میں اس سے کہنے لگا، خدا ان کے درجات بلند کرے، کیونکہ وہ ایک نیک جنات تھا۔ یہ سن کر وہ مسکرائی تھی، پھر کہنے لگی، لیکن میرے دل میں کوئی ملال نہیں، کیونکہ میں نے اپنے باپ کی بہت خدمت کی۔ جب نادانی میں باپ سے ناراض ہو کر میں انسانوں کی دنیا میں چلی گئی تھی تو میں نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ پھر سمجھ میں آیا کہ خاندان کا سہارا بہت بڑا سہارا ہوتا ہے۔ تم نے مجھے میرے خاندان سے ملوانے میں بھرپور کردار ادا کیا، اسی لیے تم اسی انعام کے مستحق تھے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، آپ کے دیے ہوئے انعام نے تو میری زندگی ہی بدل دی۔
اب میں بہت خوش ہوں. میرے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی میرے بچے کا نام رکھیں. یہ سن کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی. پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، لوگ ہم سے خوف کھاتے ہیں، لیکن پہلی بار کسی انسان کو دیکھ رہی ہوں جو مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہا ہے. لیکن جب تمہارے بچے کی پیدائش ہوگی تو میں اسے ضرور دیکھنے آؤں گی. یہ کہتے وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی. میں بھی پھر مسکراتا گنگناتا اپنے گھر جانے لگا، جہاں پر میری بیوی بھی میرا انتظار کر رہی تھی. اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.